Hello students, today I will be informing you about violations of rights of children. Yes, are children also one of the vulnerable form of group because they have been violated as compared to the pattern of violation of rights of the mentioned SC, ST, women. Children's problem and needs are quite different. Children from all social groups suffer from violation of their rights, although in different measure. इसका मतलब ये है कि बाकी के vulnerable group से children are facing more problem because they are small, they are weak, एंड दे कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ. वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ ये बुरा बर्ताव हो रहा है. सो अंडर दिस वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन द मेन थिंग इज ऑफ चाइल्ड अब्यूज. चाइल्ड अब्यूज का मतलब है यूज फॉर अ बैड पर्पज. Okay, so child abuse may include any act or failure to act by a parent or a caregiver that result in actual or potential harm to a child and can occur in a child's home or in the organization, schools, communities and the another places where child interacts with. Okay, मतलब abuse का मतलब क्या है? उनके साथ बुरा बर्ताव करना, उनको यूज करना. ओके, गलत व्यवहार के लिए उनको चिल्ड्रन को यूज करना. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज. फर्स्ट टाइप इज फिजिकल अब्यूज. फिजिकल अब्यूज मतलब फिजिकली उनको तकलीफ देने के लिए. सी दिस पिक्चर्स, उनको मारना, उनके ऊपर गुस्सा करना, बीटिंग देम, ब्रूजिंग देम, ओके, making a wound on their body. Sometime what happened, these adult, बड़े लोग जो होते हैं अपना गुस्सा चिल्ड्रन के ऊपर उतारते हैं क्योंकि बेचारे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड जो बड़े लोग होते हैं वो ताकतवर होते हैं, they will use their strength to beat them and for abusing these children. So physical abuse means child abuse may include any act or failure to act by a parent or a caregiver that result in actual or potential harm to a child and can occur in a child's home, schools, organizations. So physical abuse includes bruises, burns, fracture, देन एब्डोमिनल इंजरी. ऐसे बहुत सारे केसेस में दिखाई देता है. बच्चों को मारने के बाद वो वुंड दिखाई देते हैं उनके बॉडी के ऊपर, फ्रैक्चर होते हैं उनके हाथ पैर. कैसे भी गुस्सा आते हैं तो जो भी हाथ में आएगा वो मारना. सी नाउ दिस मेनली हैपन्स इन इंडियन सोसाइटी. ओके, पहले से ज़माने से ऐसे देखा गया है कि चिल्ड्रन को डांटना मीन्स वर्चुअली नहीं, वर्बली नहीं, सिर्फ उनको हाथ लगा के, मतलब उनको मार पीट के इतना जोर जोर से मारो तभी वो सुधरेंगे. यही कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ पे. सो दिस इज वन ऑफ द अब्यूज एंड दिस इज वन ऑफ द वायलेशन वेयर द चिल्ड्रन अफेक्ट्स. देन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज. It is defined by Juvenile Justice Act 1986 as interaction between a child under 18 or 16 years and an adult and children में जो interaction होता है, sexual interaction, तभी इसको child sexual abuse कहा जाता है. It is also called as a child molestation. It's a form of child abuse in which an adult or older adolescent use child for sexual stimulation. Forms of child sexual abuse include engaging in sexual activities with a child, indecent exposure, child grooming, and child sexual exploitation, including using child to produce child pornography.
See, this is very serious matter. People, or we can say adult, use children to stimulate their sexual act. Okay, so here these cases cannot be surveyed, or these cases cannot be disclosed. ये ऐसे केसेस बाहर नहीं आते हैं, डिस्क्लोज नहीं होता है, बिकॉज चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है कि व्हाट इज़ अ सेक्सुअल अब्यूज़, व्हाट इज़ सेक्सुअल एक्ट. सो उनके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको यूज़ किया जाता है. समटाइम इनडिसेंट एक्सपोजर, मतलब चाइल्ड को ऐसे एक्सपोज किया जाता है विच विल बी कंसिडर एज अ सेक्सुअल एक्सपोजर. देन चाइल्ड ग्रूमिंग, मतलब उनको ऐसा सजाया जाता है, एंड दे हैव बीन यूज्ड फॉर showing their sexual organ to someone else. So this is also one of the sexual act, sexual abuse act. Child sexual abuse can occur in a variety of settings, including home, schools, or workplaces. Child marriage is also one of the main form of child sexual abuse. According to UNICEF, मतलब United Nations Children's Fund, has stated that child marriage represent perhaps the most prevalent form of sexual abuse and exploitation of girls. मतलब अभी चाइल्ड मैरिजेस को बैन किया गया है, लेकिन कोई कोई जगह पे चाइल्ड मैरिजेस अभी भी प्रैक्टिस हो रही है. सो ऐसे कहा जाता है मैरिज इज इट इज़ बैंड. But again, if the children are getting married in their early ages, so it is considered as a sexual abuse because it is against the act. The effects of child sexual abuse can include, see देखो, there is a one sense in children जो हर ह्यूमन बीइंग को होता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है. ये एक सेंस रहता है. भले चिल्ड्रन को कुछ पता नहीं रहता है व्हाट इज सेक्सुअल एक्ट और व्हाट इज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उनको ये सब पता नहीं है, बट फिर भी सम टाइम व्हाट हैपेंड, कोई अननोन पर्सन है या कोई रिलेटिव्स में ही नोन पर्सन है जो उनके साथ खिलवाड़ करता है, उनको अच्छे से बर्ताव नहीं करता है. सो दैट टाइम चिल्ड्रन कम टू नो. ओके, बच्चों को पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग. सो इसके लिए आजकल सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, जहाँ पे बैड टच, गुड टच क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी है. बैड टच मीन्स समवन, सी दिस इज अ मेंटालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. देयर आर मेनी पीपल हु थिंक दैट कि बच्चे कमज़ोर है तो उनको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो उनको टॉर्चर कर सकते हैं, टीज करना, ये भी एक एक्ट होता है. बट अंडर द सेक्सुअल अब्यूज, चिल्ड्रन मेनली यूज्ड टू गेट फॉर द सेक्सुअल स्टिम्युलेशन. द इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कैन इंक्लूड डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, propensity to further victimization in adulthood, and physical injury to the child, among other problems. इसका मतलब ये है कि आफ्टर सेक्सुअल अब्यूज चाइल्ड में गो फॉर द अंडर द डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, और उनको जो वो इंसिडेंट्स के बाद ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब दे फील दैट उनको वो इंसिडेंट्स का उनके दिमाग के ऊपर इतना बुरा असर होता है कि वो ज़िंदगी भर भूलते नहीं हैं. सो वो स्ट्रेस में जा सकते हैं. एंड ट्रॉमेटिक मीन्स इट इज़ हाईली और क्रोनिक स्ट्रेस, एंड दैट बिकम सो लॉन्ग फॉर लाइफ टाइम. ओके, सो वो ट्रॉमा में चले जाते हैं. उनको लगता है कि उनके साथ इतना बुरा हुआ है कि वो जीना ही नहीं चाहते हैं. सो अंडर दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे विल सफ़र बाय मेनी psychological disorders,
देन एंग्जाइटी मतलब they may after children or after sexual abuse child may feel anxiety मतलब एग्रेसिवनेस, बहुत ही एग्रेसिव बनते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें, बिकॉज सी मेमोरी, भले उनके शरीर को वो एहसास नहीं होता है लेकिन उनको ये पता रहता है कि उनके साथ समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो बुरा है, and that will remain in their memory in the brain, and they will fall under anxiety. Then complex post traumatic stress disorder. So here disorder मतलब ये ऐसे डिसीज है साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पे उनको ये ऐसी बीमारी होती है कि वो स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत ही उनके लिए मुश्किल होता है. देन प्रोपेंसिटी मतलब डिसेंसी, ओके, डिसेंट बिहेवियर. सो दे विल नॉट बिहेव डिसेंटली, वो डिसेंटली बिहेव नहीं करते हैं, दे फील डिफरेंटली, उनको कुछ अलग ही होता है. सो दिस विल नॉट, ये बहुत ही कोशिश के बाद, साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट के बाद ही वो नॉर्मल आ सकते हैं. एंड फिजिकल इंजरी, यस ऑफ कोर्स सेक्शुअल अब्यूज़ में फिजिकल इंजरी भी होती है. Then see, sexual abuse by a family member is a form of incest and can result in more serious and long-term psychological trauma, especially in case of parental incest. Incest का मतलब है sexual act. Okay, so here most of the family, there are, according to the National Crime Bureau, there are many cases of child sexual abuse happens in their own family, उनके ही फैमिली में ये ऐसे अब्यूज होता है. ओके, एंड व्हेन इट हैपन्स इन देयर ओन फैमिली it is known as incest. Okay, so here yes, of course sexual abuse, ये child हो या women हो या girl हो, कोई भी हो, ये गलत ही है, but still people's mentality can't be changed, and because of that many children may suffer. Then another child abuse, another type is emotional abuse. Emotional abuse happens when a child is repeatedly made to feel worthless, unloved, alone or scared. Okay, see, कभी कभी क्या होता है, if child is alone, उनके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं, अगर वो अनाथ है, अगर वो उनको इन देयर माइंड दे फील वेरी लोनली, स्केर्ड, डरते रहते हैं. सो दिस कम्स अंडर इमोशनल. अभी कुछ लोगों को ये आदत होती है कि चिल्ड्रन को डराना, उनके ऊपर गुस्सा करना, बार बार उनके ऊपर गुस्सा करना, वर्बली उनको बहुत गलत बोलना कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुमको कुछ भी नहीं आता है, यू आर नथिंग, तुमको स्टडी भी नहीं आता है, व्हाट आर यू काइंड ऑफ चाइल्ड, कैसे बच्चे हो, देखो आजू बाजू के बच्चे कैसे हैं. सो बार बार ये कंपैरिजन करना, बार बार ये क्रिटिसिज्म करना, उनके ऊपर चिल्लाना, उनको टीज करना मतलब सी यू नो समटाइम अगर आपको भी कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ रहेगा तो सम पीपल, स्ट्रेंजर्स हो या फिर नॉन पर्सन, हमारे रिलेटिव्स हमारे घर पे आते हैं और बच्चों को गालों के ऊपर जोर से ऐसे करते हैं और टीज करते हैं, कभी कभी बालों के ऊपर हाथ लगाते हैं और कुछ बोलते हैं. See, this all comes under abuse. Okay, sometimes it is physical, sometimes it is emotional. Okay, emotional abuse में उनको टॉर्चर, इमोशनली मेंटली टॉर्चर करना, टीजिंग करना, बोलना, गलत बोलना. Okay, it is also known as a psychological or verbal abuse. Verbally मतलब orally बोलना. It is the most common form of child abuse. It can include constant rejection, hostility, teasing, bullying, yelling, criticism, and exposure to family violence. मतलब उनके सामने अगर वायलेंस होता है, फैमिली में बार बार झगड़े होना, बार उनके सामने, अगर बच्चों के सामने हस्बैंड एंड वाइफ आर बीटिंग टू ईच अदर, दे आर
making noises, they are making bad word in front of them, so they may go under the emotional abuse. उनको बुरा लगता है, वो बोल नहीं सकते हैं, they can't express, but they can feel, वो feel होता है उनको. And the impact of emotional abuse are just as harmful as physical abuse. मतलब अगर मारपीट भी नहीं करेंगे हाथ से, लेकिन इमोशनली बार बार अगर उनको क्रिटिसाइज करना, मतलब उनको सी मोटिवेशन देना डिफरेंट है, एंड उनको हमेशा डीमोटिवेट करना, क्रिटिसाइज करना, कुछ नहीं आता है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम लोग ने ऐसा किया वैसे किया, तुमको कुछ नहीं आता है. Just such kind of things happens in many places, in the many families. Okay, so by guardians, the child get emotionally abused. We'll see types of emotional abuse. Typically, repeated incidents of abuse build up over time and cause lasting effects upon a child's development and well-being. Okay, basically, who are this child? ये children कौन है? Who are these children? ये जो बच्चे हैं छोटे, जो विकसित रूप में जा रहे हैं, they are in a developing stage. So at that moment, उनके developing stage में, physical development, mental developing stage में, उनको इंस्पायर करना, अगर उनको प्रेरित करना है अच्छे काम के लिए, या फिर उनको मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए, उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा. तो इसके लिए many parent work hard, but in that what parent do? Parent impose their own what you can say demands on over their children. उनके डिमांड्स को ऐसे हमेशा होता है कि जो हम नहीं कर सकते हैं, जो पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को करके बच्चों में देखते हैं, राइट. सो दे आर इम्पोजिंग देयर ओन डिमांड्स ओवर द चाइल्ड. और इसी हालात में सी यस, पेरेंट्स नेवर बी रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, बट जो तरीका होता है, वे ऑफ इम्पोजिंग, वे ऑफ पुटिंग द थिंग्स इन द चिल्ड्रंस माइंड इज डिफरेंट. ओके, वो हर पेरेंट ने सीखना चाहिए, नॉट ओनली पेरेंट बट ऑल अदर पीपल who are to whom these children come across. Okay, so however single incident, ये abuse क्यों होते हैं children's को? So however single incidents can cause serious harm as well. Some examples of emotional abuse include continuously ignoring or rejecting a child. मतलब कभी कभी बच्चे आते हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, ये देखो वो देखो, उनकी बातें छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग उनको इंटरेस्ट नहीं देते हैं उसमें, और वो बीच बीच में हम लोगों को तंग करते हैं, तो हम लोग उनको रिजेक्ट करते हैं, जाओ भागो यहाँ से, मत आना यहाँ पे, द काइंड ऑफ थिंग. सो दे ऑल्सो गेट इमोशनली अब्यूज्ड. देन फिजिकली और सोशली आइसोलेटिंग ए चाइल्ड. मतलब कभी कभी पेरेंट को लगता है कि चिल्ड्रन को उनको सोसाइटी के काम के लिए नहीं, बाहर नहीं भेजना है, घर पे ही बिठाना है, दूसरे बच्चों के साथ उनको खेल कूदने के लिए इजाज़त नहीं देनी है. दे डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गेट मिक्स विद अदर चिल्ड्रन. आइसोलेट रखते हैं, अलग अलग रखते हैं. हाँ, ये मोबाइल ले लो, ये टीवी देखो, घर पे बैठो, बाहर मत जाओ, ऐसे बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, तो वो घर पे ही बैठते हैं, एंड दे विल ऑल्सो फील इमोशनली अब्यूज. फोर्सिंग अ चाइल्ड टू डू थिंग्स बाय स्कैरिंग देम, उनको डरा के धमका के, ये करो नहीं तो मार मिलेगी, वो खाओ, वो मत खाना नहीं तो मार मिलेगी. ओके, एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू डोमेस्टिक वायलेंस, constantly criticizing, humiliating, blaming a child, constantly swearing, yelling or screaming at a child. Swearing मतलब उनको promises करना, उनके ऊपर चिल्लाना, बार बार चिल्लाना, ये भी गलत होता है. Making a child feel different from other family members. Yes, this happens in most of the family.
इसका मतलब क्या होता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, उनको ऐसा दिलाना कि वो कुछ अलग ही है। कभी कभी क्या लाडले होते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनको अलग से कुछ खाना देना, अलग से स्पेशल डिश देना। से ये लाड़ प्यार तो एक हद तक, एक लिमिट तक लिए अच्छा होता है, बट आगे वही चिल्ड्रन उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर इमोशनल अब्यूज़। ओके, सो फॉर गुड पर्पज इट इज़ गुड, बट अगर चिल्ड्रन को बार बार निगलेक्ट करके फैमिली के साथ उसको इन्वॉल्व नहीं करना, ये भी इमोशनली अब्यूज होता है। टेलिंग अ चाइल्ड दैट दे आर worthless, unloved or not enough, withholding love, support, praise or attention from a child, bullying, teasing, insulting, belittling a child। bullying का मतलब होता है बदमाशी करना चिल्ड्रन के साथ। कभी कभी टीजिंग, कुछ लोग बच्चों को टीज करते, बार बार उल्टा ही सवाल पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं पूछते हैं। उनकी जैसे फॉर एग्जांपल टांग खींचना हम लोग बोलते हैं ना, वैसे चिल्ड्रन को बार बार चिढ़ाते हैं, तुमको ये नहीं आता है, कैसे तुम्हारे बाल कैसे हैं, देखो। चिढ़ाते चिढ़ाते में एक लिमिट तक चिढ़ाना इस अच्छा होता है, बट अगर वो बार बार कोई चिल्ड्रन को ऐसे करेगी तो वो इमोशनल अब्यूज हो सकता है। Having unrealistic expectations or unreasonable demands of a child. As I told you, parents expect many things from children. They feel that if they are not able to do, okay, parents are not able to do the things, they expect that things from the children, their children. So not allowing a child to explore, express themselves, learn or make friends. Treating a child badly because of things they can't change. जैसे अगर किसी को डिसेबिलिटी है, जेंडर प्रॉब्लम है, सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम है, सो वो बच्चों को टीज करना, उनको बार बार गलत बोलना उनके साथ। देन थ्रेटनिंग अब्यूज और थ्रेट्स टू हार्म लव्ड वंस और पेट्स। तो see, these all are examples of emotional abuse, and because of that the children have to go under the emotional trauma. See, there are many crime against children. There are many crimes. These are the data where the crimes against children are showing. See, in India, in all states, जैसे बिहार में, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड गुजरात का ये डेटा है वेयर women married before the age of 18. So here the girl child crime, so it is also a crime, right? So अगर वो 18 साल से पहले ही उसकी शादी होती है तो उसके साथ इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज हो सकता है. So these are the cases. Then these are the recorded cases of child rape. So in 2016 there are 20,000 cases recorded in Maharashtra, in India, sorry. Then crime against children, there are many crimes. Many crimes like abduction, kidnapping, murdering, then yes, raping. So these are according to in the 2016 there are 1,06,958 cases are recorded. This also are data where किडनैपिंग एंड एब्डक्शन 2015 का डेटा है, 2016 का डेटा है. कितने केसेस बढ़ गए हैं देखो. देन मर्डर के केसेस है, चाइल्ड मर्डर. ओके, बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे. देन हियर रेप प्रोविजंस अंडर पोस्को एंड ITC went together. So these are the rape cases registered under against children. Then unnatural offenses. Unnatural offenses मतलब इसमें मारपीट होना, किडनैपिंग करना, अब्यूज़ करना, ये सब केसेस आते हैं. सो सी हाउ ह्यूमन्स, हम लोग ह्यूमन कैसा है,
कि वो छोटे बच्चों को भी इतनी तकलीफ दे सकते हैं, बड़े तो जाने दो, लेकिन दे आर ऑल्सो मेकिंग चिल्ड्रन एज अ विक्टिम फॉर क्राइम, फॉर मर्डर. सो व्हाट मेंटालिटी ऑफ दिस पीपल आर, उनकी मेंटालिटी कैसी है, वो कहाँ से पने पड़े हैं. दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन. ओके, आप सी, अब मैं तो ये बोलती हूँ कि इन एवरी फैमिली I think 99% children are getting abused, verbally, non-verbally, physically. Okay, मतलब ये हम लोग everyone is going through all this matter of violations. लेकिन उसका परसेंटेज कम ज़्यादा रहता है. किसी किसी घर में तो बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बच्चों को बहुत तकलीफ देती है. इतना उनको सी समटाइम व्हाट हैपन, बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन मिलता है, इतना प्रोटेक्शन कि दे पीपल दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू क्राई, उनको रोने ही नहीं देते हैं. ये भी गलत है. एक्सट्रीम लेवल का प्रोटेक्शन होता है. और किसी किसी घर में तो बच्चों को निगलेक्ट ही किया जाता है. उनको क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, पूरा दिन मोबाइल पे रहते हैं, सो उनको पूरा निगलेक्ट किया जाता है. सो टू टाइप्स और टू काइंड ऑफ मेंटालिटीज देयर, लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है. सो इट कम्स अंडर वायलेशंस ऑफ चिल्ड्रन. ओके, वन अनदर वायलेशन इज चाइल्ड लेबर दैट वी नो. इंडिया में वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनको काम दिया जाता है under 14, under 18 year age. So this also comes under child labor. About 5 million children are still working in India. Children are neither working nor going to schools, are 4 times as many as child workers. मतलब 4% ज़्यादा है जो स्कूल में नहीं जाते हैं और काम भी नहीं करते हैं. Girls remain at home to take care of their younger siblings. गर्ल्स जो बड़ी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो अपने छोटे बच्चों को, सिस्टर्स को, बहन भाइयों को संभालने के लिए घर पे ही बैठते हैं, उनको बिठाते हैं, काम पे नहीं जाने देते, ना उनको एजुकेशन देने की बारे में सोचते हैं. चाइल्ड लेबर रिमेन्स मोर इन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. Child labor is higher among minorities, SCs and STs. Across sectors, child labor is prevalent in agriculture and manufacturing. Okay, अगर आप थोड़ा सा सर्च करते हो, बुक्स पढ़ते हो, so you will find many cases of child labor. See, कभी कभी क्या होता है, जो पुअर फैमिली में they don't plan for kids, वो किड्स के लिए. सी नाउ आई एम टॉकिंग टू ऑल स्टूडेंट हु आर मैच्योर्ड इनफ. ओके, सो ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक बहुत संभल के उसके बारे में सोचना है, राइट. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पुअर फैमिलीज, अनएजुकेटेड फैमिलीज, वेयर दे डोंट वांट टू प्लान फॉर किड्स एंड दे ओनली मेक चिल्ड्रन for begging और for getting work. उनको चिल्ड्रन क्यों चाहिए, उनको चिल्ड्रन काम करने के लिए चाहिए, पैसा कमाने के लिए चाहिए. दे थिंक दैट जितने हेड्स ज़्यादा हैं फैमिली में उतना पैसा ज़्यादा आएगा, बट दे डोंट थिंक दैट जितने हेड्स ज़्यादा हैं उनको खाने के लिए भी उतना ही लगेगा, उनके लिए उनको ज़्यादा पैसा लगेगा. सी आई टेल यू वन ऑफ द एक्सपीरियंस. वन ऑफ हमारे घर के आजू बाजू में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और वहाँ पे एक फैमिली, पुअर फैमिली रह रही है एंड झोपड़ी में रहती है. एंड उसमें उस 3 साल में शी डिलीवर्ड 3 बॉयज़, 3 बच्चे हुए हैं 1-1 साल के डिस्टेंस पे. मतलब ना उनका पालन पोषण अच्छे से होगा, ना उनको एजुकेशन तो नहीं मिल रहा है. बड़ा लड़का जो है वो अभी 7 और 8 साल का है, छोटा बच्चा उससे ही 1 साल छोटा है. एंड कि तीनों किसी को भी उसको उन्होंने एजुकेशन नहीं, स्कूल में नहीं भेजा है. सो आई आस्क्ड दैट लेडी, वाह आप उनको स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं. सो शी से कि क्या करना है स्कूल जाके, हम तो ऐसे एक रास्ते का काम करते हैं, हम लोग को 1000 मिलता है. दे गेट 1000 रुपीज़
फॉर डे, अगर जब काम है तो 1,000 मिलता है, काम नहीं है तो नहीं मिलता है. सो पूरे मंथ में, एक महीने में उनकी सैलरी जाती है 20,000. तो वो बोलते हैं कि क्या करना है पढ़ के. सो दिस हैपन्स. ऐसी सोच है लोगों की, जहाँ पे हम लोग हैं जो एजुकेशन लेने के बारे में सोचते हैं. वी ऑल थिंक दैट वी हैव टू गेट एजुकेशन, वी हैव टू टेक एजुकेशन, और सीखना है एंड ऐसे एक एक्सट्रीम लेवल तक दूसरे ऐसे लोग हैं जो पुअर है एंड दे थिंक दैट दे डोंट वांट एजुकेशन. सो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, दैट पीपल थिंक, एंड वो बच्चों को वैसे ही बनाते हैं कि सीखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही काम करते रहना है, लेबर बन के ही रहना है. नाउ यस, साइबर क्राइम, it is one of the worst crime nowadays. This is a big question and threat for the human being. साइबर फैक्ट फाइल. पहले तो साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम बाद में देखेंगे. फर्स्ट विल सी. द इंडिया became the third largest internet user. India is expected to have 529 million internet users by 2018. Online pornography, then cases showed at 100% increase from 2012 to 2013. There are India features in the list of top 20 countries with maximum percentage of cyber crime. हम लोग आगे हैं इसमें भी, साइबर क्राइम में. 55.7% of the total cyber criminals were found to be in the age group of 18 to 30 years. See here, cyber crime is becoming so advanced level that we cannot reach. बिकॉज आपके हाथ में, जैसे लड़के के हाथ में मोबाइल, वैसे हम लोगों के हाथ में मोबाइल है, खास करके आप लोगों के हाथ में मोबाइल है. ऐसे एज में 18 to 30 और बिलो 18, उनको लाइफ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, बट दे आर यूजिंग मोबाइल एंड दे आर मेकिंग मोबाइल फॉर बैड पर्पज, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस साइबर क्राइम मेनी थिंग्स हैपन्स. चिल्ड्रन भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं साइबर क्राइम की वजह से. साइबर क्राइम इज द इलीगल यूज ऑफ कंप्यूटर्स और इंटरनेट. Crime committed by means of computer or internet. Okay, according to US Department of Justice DOJ, cybercrime can be divided into 3 categories, like crimes in which the computing device is the target, for example to gain network access. Crimes in which the computer is used as a weapon. Crime in which the computer is used as an accessory to a crime. तो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है और उससे वर्चुअल क्राइम करे हैं. नाउ विल सी द साइबर क्राइम्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन. मोस्ट साइबर क्राइम इज एन अटैक ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट टेक प्लेस ऑन द पर्सनल और कॉरपोरेट वर्चुअल बॉडी. The development of internet nowadays have both a positive and negative impact. Okay, all the people including children are also become a victim and their impact is very bad. By using computer, attacks are done by cyber terrorism such as hacking, spam, virus, credit fraud, trafficking in pornography, posting obscene photographs, sending fake emails, bombarding of emails, bombarding of wrong information, misusing of information, digital privacy, then money laundering. Okay, these are n number of things happens by the cyber crime. It is also when they happen to meet each other in person that they see a person who may be an old man in their 40s or 50s with whom they were chatting and realize their mistakes. Many children see the impact. Many children commit suicide when their offensive pictures are posted online. Children often avoid telling their parents or anyone about his mistake as they are afraid or there is a threat which causes further more trouble. So ऐसे cyber crime से children गुजरते हैं and they are not telling about
is problem to their parent. Communication नहीं हो पाता है and they become a victim and many harsh cases से उनको गुजरना पड़ता है. Now neglect of children's development needs. जहाँ पे चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट नीड्स को निगलेक्ट किया जाएगा तब भी चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम सच एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. 19.8 million children are undernourished. This data is I have taken this data from Czech publication book and from internet. ये इंडिया के बारे में है. 38% चिल्ड्रन आर स्टंटेड. स्टंटेड मतलब उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हुई है. 58% चिल्ड्रन आर एनेमिक. 62% चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज्ड. इम्यूनाइज्ड मतलब जिनको वैक्सीन्स दिए हैं. ओनली 62% चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज्ड. जिनको BCG, पोलियो, टाइफॉइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी वैक्सीनेशन होता है विद इन 3 months, 4 months, 6 months टिल 10 years वो वैक्सीन्स उनको नहीं दी जाती है. देन गर्ल चाइल्ड 42% ऑफ मैरिड वुमेन वेर मैरिड एज अ चाइल्ड. मतलब हमारे देश में 42% मैरिड वुमेन आर गर्ल्स. ओके, सो पहले तो वो वुमेन है और वो चाइल्ड है. सो वुमेन आर फेसिंग डबल प्रॉब्लम. देन एजुकेशन. डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन according to DISC 2014, 99 million children have dropped out ratio. मतलब ड्रॉप आउट मतलब फेल हुए हैं और जिन्होंने स्कूल छोड़ा है. ऐसे कितने बच्चे हैं? 99 million according to 2011 census. Then 32% children finish their school education. Only 32% children finish their school education. और बाकी के चिल्ड्रन वो कुछ काम करते हैं. दे वर्क एंड दे बिकम अ लेबर. 2% schools offer complete education from class 1 to 12. बाकी के schools ये education का offer उनको देते ही नहीं है. So after that they will not go to the schools and they remain out of the school for longer time. वो स्कूल को छोड़ते हैं. They leave the schools and become uneducated. Okay, so this is all about the violation of children. Okay, you go through this video again and again and think about it, and then we will keep a interaction session where we will all discuss this topic. Okay, thank you students.